of mass. देखो the product of the mass and the distance of the particles, the product of the mass and the distance of the particles from their origin, the product of the mass and the distance of the particle from their origin, and the ratio of total sum of the masses, and the ratio of the total sum of the masses known as center of mass. Let us consider unshaped body is placed at axis. Therefore, the center of mass bar x is equal to m1 x1, m2 x2, mn xn upon m1 m2 plus mn. If the two or more particle is function at the body, that body shape is like as unshaped lamina, then it will be the center of mass of basically depend upon the mass and the product and the ratio total mass of the sum. If it will be moved in the different type of axis to like as x axis or y axis, then we also use to the coordinate to identify to the center of mass belong to that axis. If x axis, then it will be also use bar x. If y axis, then it will be used as the bar y. If z axis, then it is also used as the z. If the component of the particles are more than 2 or 3, to like as the n particle, then the total sum m1, m2, m3 and m. Okay. You can also identify to the center of mass in this term. If identify the component in terms of bar y on y axis, then the component to be change m1 y1 plus m2 y2 like as mn yn upon mn plus m2 plus mn. That was the basically concept of the center of mass. That is different from the center of gravity. What is the center of gravity? That was the point where the total weight of the object is functioned. It is known as the center of gravity. To like as when the person take a pen, to like as the marker. In that condition, the center of gravity is function between our two fingers. Between two fingers to like. Then center of gravity is function in that point. If we applied the force, then that was the pressure. At that point where it will be in the compression of whole body, then it will be sharp and narrow. When we effort on the body, then it will be function it, and you can be retain anything to like it. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या बेटा कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार जहाँ काम करता है उसको आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी चीज़ का आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इस कमरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइडेंटिफाई करना है, तो आप इसमें क्या करेंगे? अगर मान लो जैसे ये कमरा स्क्वायर जैसा है कुछ समथिंग, तो आइडेंटिफाई कर लें कि वहाँ से सेंटर से डिस्टेंस से तीनों कॉर्नर चारों कॉर्नर की क्या
तो जो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी हर जगह तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल तुम जैसे कभी जो है क्रिकेट या फुटबॉल खेलते तो वहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब, क्रिकेट में क्या खेलते हो, कभी कभी जैसे बैट से मान लो शॉट लगाए तो जब आदमी शॉट लगाता है तो कभी कभी बोलता है कि मिडलिंग हो गई बैट से, ये मिडलिंग का कंडीशन। तो जब मिडलिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर उस बैट का जहाँ पर टोटल वेट फंक्शन कर रहा है, that is the center of gravity, and it will be effort to the maximum force on the body and body to be covered the maximum distance or range. For example, another, when the person to be rise up in the upward direction to with help of the stair, सीढ़ी, जैसे मान लो सीढ़ी पे आप चलते हो, अब आपने अपने जो है बैग पे पीठ पे क्या बैग लिया हुआ, तो जब बैग लेके आप चलेंगे तो अपने आप बॉडी थोड़ी ऐसे बेंड हो जाए, आप बैग लेके ऐसे टाइट नहीं चल सकते, क्योंकि इन दैट कंडीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बैक पे काम करती है। जैसे दौड़ते हैं तो दौड़ते समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों पैरों की फीट के बीच में यहाँ काम करती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये डिसाइड करती है कि इसी बॉडी का जो है टोटल वेट कहाँ पर फंक्शन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई जो है फिजिकल बैलेंस ले लिया, अब फिजिकल बैलेंस में क्या है कि जैसे मान लो बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे टॉर्क रिलेशन काम करता है, वो टॉर्क का सिस्टम है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बिटवीन वाला जो पॉइंट हो जहाँ से आप उसको जो है बैलेंस करते हो, उसको टैकल करते हो, तो वो जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे काम करेगी। कोई भी आदमी है जैसे किसी भी बॉडी के ऊपर जो है दो टाइप के फोर्स काम करते, एक जो फोर्स यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और जो नीचे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेट। What is the normal reaction force? That is also equal to the applied weight in the downward direction. If the normal reaction force of the body to be zero and the person is also feel as the weightless or free fall. What is the weightless or free fall? In that condition when the normal reaction force is zero. For example, जैसे by the way मान लीजिए आप जो है किसी स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं, कोई सरफेस जो है फ्लोर है, अब उस फ्लोर पे मान लीजिए कोई लुब्रिकेंट्स टाइप में कोई ऑयल गिरा हुआ है, 2-4-10 लीटर गिरा हुआ है, और जब उस ऑयल पे आप चलने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पैर होगा फोर्स एफर्ट करेगा, लेकिन जस्ट अबाउट उसके रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स एफर्ट करेंगे ये एंकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा तो तुम धड़ाम से गिर जाओगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब प्रतिक्रिया बल जीरो हो जाएगा बॉडी का, तब किसी भी आदमी को लगता है कि उसके बॉडी का कोई वेट ही नहीं। आप किसी भी जो है ऐसे जो है पॉलिश सरफेस पे बहुत ज़्यादा, या कोई स्मूथी सरफेस हो जैसे जहाँ पर फंगी हो, शैवाल जिसको बायोलॉजी में बोलते हो, तो अगर मान लो काई वाले सरफेस पे चलते तो भी तुम अक्सर फिसल जाते। क्यों होता है? क्योंकि जब आप फिजिक्स के फिनोमेना को अप्लाइड करते हैं, आप जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाएं तो वेट ही आ गया। तो इन दैट कंडीशन जैसे ही फोर्स एफर्ट हुआ तो वो काई वाला सरफेस क्या है, वो बहुत ही जैसे एक टाइप से ये स्लीपी सरफेस, फिसलने वाला, तो उसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी एक पोजीशन पे रह नहीं पाएगी। आप फोर्स एफर्ट करेंगे पोजीशन चेंज होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तुम गिर जाओगे। तो जब गिर जाओगे तो तुमको लगेगा कि तुम्हारे बॉडी का कोई वेट ही नहीं। वो तो गिरने के बाद पता लगता है ना, चोट लग गई आपको तो लगा कि हाँ भैया हाथ टूट गया। तो इन दैट कंडीशन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन चेंज करेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन फॉर जैसे अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स है, ठीक है, स्पेस में जा रहा, अब स्पेस में गया हो तो स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से गया, तो जब तुम देखते हो कि स्पेस में अगर कभी कोई न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जिस स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं उड़ते रहते हैं, क्योंकि इन दैट कंडीशन वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द बॉडी टू बी जीरो। अनदर एग्जाम्पल इज द लिफ्ट। लिफ्ट में क्या है, जैसे अगर कोई लिफ्ट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रही है तो इन दैट कंडीशन यू कैन आल्सो फील सम वेट ऑफ योर बॉडी, ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब वही बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाता है, वी कैन आल्सो फील एट द वेटलेस, ठीक है। What is the normal reaction force and how will be person feel as the weightless? When the applied force of the normal reaction will be zero, then person to be weightless. In that condition, the students is seated on their tables or chair something. If the person is applied a force on their back, अगर आपकी पीठ पे कोई ऐसे फोर्स लगाता है पीछे से, तुम आगे की तरफ बेंड हो जाते। क्यों? क्योंकि इन दैट कंडीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फंक्शन एट योर बैक बोन्स।
तो जो बैकबोन से वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे काम कर रही है, तो एक वेट क्या होगा, डायरेक्शन होगा नीचे ना, तो नीचे क्या होगा, ग्रेविटेशन हो गया, तो वेट हो गया, और उसी से ऊपर हो गया तो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. व्हेन द पर्सन टू बी अप्लाइड ए फोर्स ऑन योर बैक, देन यू विल बी बेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू बी चेंज. Therefore, the center of gravity is different funda in the comparison of the center of mass. ठीक है, the center of gravity that will be function on the gravity. If the value of the gravity will be changed, when the person going rise up upward, in that condition gravity will be negative. If the downward, then the value of the gravity will be positive and the position is also changed. Then center of gravity is the different function of the body or different system in the comparison of the center of mass. Okay, note करो.